आरसीबी और किंग्स 11 दो ऐसी टीम में जीतते क्यों नहीं है? टीम का माहौल बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट You've won so many games, especially while chasing. I think you were one of the best finishers, at least in domestic and in IPL as well. How are you a match winner? टू फिनिश गेम्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, टू हैव फेथ इन योर एबिलिटी। Shubman looks at you as a mentor. ये तो थोड़ा उसको पूछना पड़ेगा आपको, बट आई फील इट्स मोर ऑफ अ ब्रदरली रिलेशनशिप, क्योंकि छोटे होते से ही वी बीन टुगेदर। Players like Virat, you've seen him closely. You think uska scale every season of performance changes or increases? I felt was he's not only the number one batsman in the world, even in the nets he's the number one, and that is why I think he's the greatest in the game. Domestic काफी क्रिकेट खेला, पर क्रिकेट जल्दी छोड़ दी. मतलब I think you were 33 when you left. हाँ जी, 30. But why leaving early? मतलब 33 में you were the main player of Punjab. I always had that हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइंड वे विद तरुवर कोहली। आज हम ऐसा क्रिकेटर लेके आए हैं जो शुभमन गिल के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। उन्होंने अपनी करियर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अब शुभमन के जब सपने पूरे होते हैं, वो देश के लिए खेलते हैं, जीतते हैं, वो भी अपने आप को उसमें देखते हैं। ये आईपीएल के लिए किंग्स 11, आरसीबी, गुजरात टाइटंस के साथ टाइटल जीत चुके हैं, केकेआर के लिए रनर्स अप रह चुके हैं और इंडिया के लिए 3 ओडीआई खेल चुके हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस इन्होंने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी का शेयर किया। किस तरीके से स्किल्स में बैकलिफ्ट और रैम शॉट एंड में उन्होंने बताया। इस वीडियो को एंड तक देखें और कुछ अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ एक ऐसे क्रिकेटर, कोच, पेरेंट के साथ शेयर करें जो इससे और सीख पाए। वेलकमिंग यू गुरकीरत मान। मान साहब, थैंक यू सो मच टाइम ਕੱਢਣ ਲਈ। मान साहब, मेरे लिए तू शुरू तो रहे हैं क्योंकि आई हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर यू एज अ प्लेयर, एज अ पर्सन। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਆਲ दैट ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर योर करियर एंड ਆਲਸੋ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਹੇ ਹੈ एज अ क्रिकेटर। thank you Baji, thank you for having me here. It's a very good feeling, क्योंकि मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ, there are very fond memories and ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ we have a conversation ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, I always get to learn something that is always there as a senior। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ, that is also very commendable. Thank you. ज़्यादा तारीफा ना करो मेरी, but I had one thing always in my mind that I've seen your career and you have seen शुभमन्स career as well. I've seen you काफी इंटरव्यूज में तूने बोला है कि शुभमन is the friend who is the close friend or maybe the best friend. काफी क्रिकेट की बातें हैं, काफी बातें you share. Is that true? जी, शुभमन ਨਾਲ ना मेरा जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज आई नो हिम जब से वो 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਸਿੰਸ ਦੈਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ, ਐਂਡ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਵੈਨਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ। See, this interview is more about you. Okay, I want to know about your journey, but obviously at the same time you have seen his graph, so we'll talk about that as well. पर पूछा मैंने इसलिए था कि उसकी जर्नी से डू यू सी कि यार मैंने भी क्रिकेट खेलनी थी, एंड वी ऑल नो पंजाब क्रिकेटर स्पेशली नो द पोटेंशियल जो तेरे अंदर था, अब लीग्स में निकल रहा है, बट वो पोटेंशियल उस सब का क्या तू शुभमन में देखता है कि यार, मतलब ऐसा कुछ डिस्कशंस या उसको देखता है वैसे कि यार मेरा करियर तो उस ग्राफ तक मैं नहीं लेके जा पाया। डू यू सी दैट इन शुभमन? ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਟੀਮ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੈ, ਕੋਈ US ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਕਾਲਸ ਆਏ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਜਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰੀਅਰ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਟ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈ ਫੀਲ ਉਹਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ आई ਕਰਦਾ। थिंक 4-5 साल का था अंकल से मेरी ਹਾਂਜੀ बहुत ਜਦੋਂ ਸਟਾर्ਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ what ਉਹ is ਡੰਡੇ you ਵੀ know, ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਧੋਂਦੇ ਸੀ Yeah. ਡੰਡਾ ਨਾਲ। ਅੰਕਲ ਨੇ obviously he's done ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ a lot of ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sacrifice, ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ but I think natural ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, मतलब now coming back to your journey, तेरी जर्नी कितना शुरू हुई? like were you sitting in the house and just bat ball पई सी as a cricketer? मुक्तसर से तू आया है, so पिंडों ही आया एक तरीके ना, not much cricket was played there, तो वहाँ से कैसे क्रिकेट ਬਿਲਕੁਲ शुरू ਭਾਜੀ, हुई? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਨਫੈਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, Okay. ਮੋਹਾਲੀ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਾਂ ਖੇਡੂਗਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। Yeah. ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੇਅਰਸ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈਜਰ ਵੈਲੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ। मैं भी ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੇਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। start किया। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। But talking about your skill level, मतलब I know the fact that you are up there, top. Your skill level was top class, पर एक दिन में तो बना ही नहीं भाई। मतलब that skill level which you achieved, which I think a lot of young cricketers or parents would want to know कि यार ये skill level achieve कैसे होता है? So in your case, what do you think कि जो जहाँ पे तू पहुँच पाया, but what about that journey? 8 साल से शुरू किया, so that 8 to 13-14 years जो base setting थी, ਹਾਂਜੀ what did you do? How did you do? I think for me it was all about passion ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਲਵ ਫॉर द ਗੇਮ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਜੋ ਮੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ from childhood, ਟਿੰਕੂ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਟਿੰਕੂ ਸਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਸ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਐ ਫੀਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। बेस अच्छा बना हुआ था, ਹਾਂਜੀ। but was it like कि अंडर आर्म पे स्टेशनरी बॉल पे सर बहुत ਸਾਰੀ करते थे? ਸਾਰੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਸ What exactly ਸਰ ਨੇ ਨਾ to do? ਆਈ ਥਿੰਕ routine ਡ੍ਰਿਲਸ क्या थी? ਡ੍ਰਿਲਸ ਦਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਕਸ। What kind of drills? ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਡ੍ਰਿਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀਆਂ ਡ੍ਰਿਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਲਿਫਟਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ Yeah. ਉਹਦੀ Oh, like weight वाली ball? ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, वो ਉਹ भी आई है। ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ हाँ ਉਹ। हाँ हाँ, heavy ਹਾਂ, tennis ball। ਹਾਂਜੀ Okay। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ वो तो दूर ਮਤਲਬ जाओगे। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਐਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਚਸ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ। But anything specific, जैसे I was interviewing Vikram Rathod sir about Surya Kumar Yadav habit, कि यार lot of habits become जब आप छोटे होते से एक specific pitch पे खेल रहे हो, एक specific ground पे खेल रहे हो। Do you think, like I feel that you are cricket smart, मतलब तेरी जो you very cricket smart कि यार किस bowler ਨੂੰ किस situation ਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, मतलब you were ready when you came and played for Punjab at the later part। पहले के पार्ट में will go in it, but what do you think, why were you so good? जो ये फिनिशिंग एबिलिटी थी, बड़े मैच जिताए हैं पंजाब को, और इवन देन इन आईपीएल टीम, व्हाट डू यू थिंक कुछ स्पेसिफिक बेस के करके भी था? ਭਾਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆਈ ਫੀਲ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਤੇ ਬੋਲਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵੇਖੇ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਬਾਡੀ ਦਾ weight, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਰੀਜ਼ਨ। So is it more about thinking about
not thinking too much about the technique but more about ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ball ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ react ਜੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਬਿਨਾ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਖੇਡਾਂ no matter what the situation is ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ opposition ਨੂੰ So you think attacking is the best option to defending? ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਰੋ। ਭਾਜੀ ਯਾਰ obviously We've ਉਹ seen ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਚਸ 'ਚ ਫੇਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸਪੈਲਸ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਜਮਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ सिचुएशन तो बट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट कि यार मेरे को डोमेस्टिक में मैं पहुंच गया हूँ पर मैं डोमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, बॉलर मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, कंडीशन मेरे को डोमिनेट कर रही हैं, मैनेजमेंट कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा पा रही है। ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਤੇ ਬਟ ਭਾਜੀ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ ਫੇਲੀਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂਡਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ ਬੰਦਾ ओके कमिंग टू योर देयर एन इंस्टेंस जैसे ना वो आया था कॉमेडी शोज आए थे, कपिल शर्मा का राइज हुआ, देयर वर शोज फॉर ऑल काइंड्स, डांस शो आता है, म्यूजिक शो आता है, देयर वाज अ शो क्रिकेट स्टार 2006। सो आई हैव ये मैंने किसी की स्काउट से सुनी है स्टोरी, किरत मान भाजी को हम तब से स्काउट कर रहे हैं 2006 से। अच्छा यू वर देयर इन दैट शो जिसमें एलिमिनेटर होता है कि यार ਹਾਂਜੀ 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 you're not ਪੂਰਾ doing ਟੀਵੀ well। ਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ हाँ, ਪੂਰਾ proper TV show। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ You remember that? ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ Yeah। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਟ ओके ओके कमिंग इनटू योर बेस के यार मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है आई रिलेट दिस टू मोर रमन's career is very similar to yours but obviously he's still playing कि अंडर 16 तक यू डिडंट प्ले मच क्रिकेट, मतलब हमारे को ना हमेशा कहा जाता था कि यार तुम तब क्रिकेट खेल पाओगे अगर तुम्हारा स्टार्टिंग से बेस सेट स्किल वाइज नहीं है पर तुम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो कि यार तुम अगर पंजाब के लिए पहुंच गए हो तुम्हारे अगले 3-4 साल एटलीस्ट पीपल विल रिकॉग्नाइज इट। ऑब्वियसली चेंज हो गया अब टाइम, गेम भी चेंज हुई है बट you didn't play much cricket under 19s में I think you played few games and then suddenly there was a shift in next 2-3 years, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहा था 200 पे 200, मतलब everybody was talking about यार गुरकीरत मान is scoring a lot of runs, छाती बाहर आ गई, but what do you think नहीं नहीं reason of that shift from not scoring much उस time पे क्या सोच रहा था and then that sudden shift? ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਫੈਲਟ ਮੇਰੀ ਗੇਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੈਸ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਗੇਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਉਦੋਂ ਟਿੰਕੂ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ MCA ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਓਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਿਆ ਫਿਰ ਔਨ ਦੇ ਸਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੋ ਬਸ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਗੇਮ that so you thought के my game is basically attacking more and उससे पहले you were कुछ एनालाइज किया था कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था, मैं मतलब कई बार होता है ना एज अ बैटर तुम बैक ही नहीं करते अपने आप को। ਹਾਂਜੀ So- ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਮੀ
ਵੀ ਸ਼ਾਟਸ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ। ਸੋ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਫਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਫਟਾਂ ਮਾਰਨ, ਸਰ ਵੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਫਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਛੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਫਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪੋजीशन ਕਿਵੇਂ है, वो सारा कुछ। We'll get into that end of the part, जैसे हमारा सेक्शन है जिसमें we talk about the skill, we show कि भाई गुरकीरत मान why is he someone who's hitting very well, so ये जो drills है ना, in the later part we'll talk about it. Definitely. पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि यार बच्चा 18 का हो गया, 17 का हो गया है, आगे क्रिकेट खेलेगा, हमें कंटिन्यू करना ही नहीं करना। बच्चे को भी होता है कि यार मैंने 8 साल से क्रिकेट शुरू करी है, तो अराउंड 8-9 ईयर्स योर पेरेंट्स आई एम श्योर वॉज सपोर्टिव, जो जितना मैंने तेरे से सुना या जितना हमें पता है अबाउट योर फैमिली, बट लॉट ऑफ पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। सो इन दैट केस क्या माइंडसेट था एज अ क्रिकेटर? और जी क्रिकेट के लिए तो आई फील माय पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव। शुरू से ही उन्होंने कभी भी मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, या कई बार जैसे स्कूल से लीव्स लेनी ड्यू टू द गेम, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया मेरे को, कभी टोका नहीं है कि नहीं तूने जाना नहीं है, या कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है कि नहीं वहाँ पे नहीं जाना। सो मेरे को लगता है कि मॉम डैड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो काफ़ी जैसे आपने बताया कि काफ़ी लोगों को नहीं वो सपोर्ट मिलता, बट आई फील कि मुझे एक्सेल करने में और उस पीरियड में जब मैं नहीं क्रिकेट खेल रहा था, उस पीरियड में इस चीज़ ने बहुत सपोर्ट किया कि इवन इफ आई एम नॉट प्लेइंग तब भी मेरे पेरेंट्स मेरे को बैक कर रहे हैं, और वो मेरे को कह रहे हैं कि तो क्या हो गया, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और हमेशा वो यही कहते थे कि किरत अगर तेरा ये पैशन है ना, सो डोंट थिंक कि किस लेवल पे खेल रहा है या क्या, जस्ट गो आउट देयर, प्ले योर क्रिकेट, कोई भी मैच खेलने जाके। तो ये ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में बहुत इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने आके मुझे ऐसे बातें जो मेरे को स्टिक कर गई। अच्छी बात है कि अच्छी बात है। थोड़ी क्रिटिकल बात है यार, वो करदा कुछ नहीं हैगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे अच्छा, घर दे so all हमेशा well, no not घर वाले, अच्छा, but teammates, selectors, coaches। मैं ज़्यादा मैं ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ क्लोज ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ओपिनियंस भी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ मतलब मेरे काफी क्लोज होਣ। हाँ, बाकियों के मैटर नहीं करते, सब बोलेंगे तो सभी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, But ਉਹ ਤਾਂ very ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ Yeah. ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਗਲੋਬਲ ਗੇਮ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ओपिनियंस भी फिर उन्हीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द राइट Yeah. अपना ओपिनियन देने का, सबको राइट है, तो जिसको जैसा लगता है ठीक है, बट अपनी तरफ से आई फील ये होना चाहिए कि जैसे माही भाई हमेशा कहते हैं कि यू गिव योर 100%, बाकी लोग क्या सोचते हैं डजंट मैटर। बट एक ना वो ऐड थी, छोटे होते थे हमें, राहुल द्रविड़ की ऐड थी कि एडवाइस तो सब देते हैं, मतलब रिक्शे वाले पे बैठे होते, रिक्शे वाला करता है राहुल भाई ऐसे खेलो ना, ऐसे खेलो ना, तो एडवाइस तो सभी देते हैं, बट इट इज फ्रॉम हु यू टेक इट फ्रॉम। डू यू थिंक you took advice like in today's time you do give some advice to Shubman के about your, or you discuss about cricket उस time पे some cricketers, some people who you like to take advice के सब देते हैं, किसी से भी ले सकते हो जो अच्छी देगा? मेरा पाजी नेचर आपको पता ही है कैसा नेचर है, आई नहीं हमें नहीं पता, बताओ। आई टॉक टू लाइक एवरीबडी, बट ये अभी आई नो माई गेम ऑल्सो, सो जो भी चीज़ मेरे को मेरी गेम में ऐसे लगता है कि या दिस विल हेल्प, मैं ज़रूर ट्राई ज़रूर की है, और जो वाकई अगर उसने हेल्प किया है तो आई हैव यू नो स्टक ऑन टू दैट, उन्होंने रखे हैं आपके नाम। नाइस। सो आई एम ओपन टू सजेशंस फ्रॉम एवरीबडी, Everyone. बट ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 100% ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ But you know it is it's a very nice point you're talking, or it's the right thing you're saying, because I remember my career under 19 World Cup के बाद I did some changes, because कोई कोच ने मुझे suggestions दी which I should not have done, उससे बैटिंग पूरी खराब, but I don't blame the coach, as you rightly said कि मतलब तुम्हारे को 18 साल में 19 साल में इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई उससे लेनी है सलाह, या वो भी सही सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा, चाहे वो कितना बड़ा कोच है या प्लेयर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारी गेम पे वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इन योर केस यू आर वेरी, आई थिंक यू आर वेरी स्मार्ट इन दैट कि तूने वो चीज़ें हर एक से नहीं सुनी है। हाँ जी, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਬੇਸਿਕਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਫ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਚਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਚਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈਨਿਊਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਕੰਪनसेट करना पैंदा। इसमें add to that, इसमें I was doing a coaching course, तो उसमें they pointed out like a doctor, like it's like a surgeon, कि कहीं पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है ना, तुमने वो टांका खोल दिया तो उससे ब्लीडिंग और शुरू हो जाएगी। सो सपोज अ बैटर स्टीव स्मिथ ऐसे बैटिंग करता है, ब्रावो अनऑर्थोडॉक्स, एल्बो इथों आंदी है बट हिज हेड इज वेरी स्टिल। अब उसको बोले भाई नहीं, कैप कॉपी बुक बैकलिफ्ट होएगी, तेरी ट्रिगर ऐसे ही होनी चाहिए, भाई रन बनने बंद हो जाएंगे। यानी इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स। ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦੀ ਵੀ, ਹੈਂਡ ਆਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੈਂਡ ਆਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿਸਣ 'ਚ ਵੀ ਅੱਡ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਊਅਰਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈਂਡ ਆਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਹੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ। But coming to your under 19s and then 23, you said कि with your coach Tinku sir you never talked about technique too much क्योंकि base बन चुका था। सर्टेन पॉइंट ਜਦੋਂ मैं मतलब 17 18 साल 19 साल का हो गया, so you're going into being an elite player, पहले you were an amateur, base बनाना जरूरी है, वो बन चुका था। coming into an elite player it's very important कि तुम टेक्निक के बारे में मत सोचो इतना, more about the tactical side। so then you started playing lot of games, छिक्के मारने शुरू किए, मैच खुल के खेलना शुरू किया। बट इसमें एक डाउट ये रहता है, मान के मैंने प्रैक्टिस तो बहुत करी है, नेट में जब वो नेट में भी हो रहा है सॉरी, मैच में जब जाके कैसे बैक करना है, मतलब काफी प्लेयर स्टिल आर हेजिडेंट, करी तो है पर मैच में नहीं खुल के खेल पाते। हाँ जी। सो व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली? भाजी आई फील बीच में एक ये भी स्टेज आया था व्हेन आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तब मैं दिल्ली जाके भी खेला था। वहाँ पे आपको पता है कि मैचेस बहुत उस टाइम पे तो बहुत प्लेयर्स जाते भी थे अपने कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इतना यहाँ पे अगर सर्कल नहीं है तो एवरीबडी यूज टू पुट इन देयर एफर्ट, वो अपना एफर्ट लगा के कहीं चले गए मैचेस खेलने। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस का मुझे काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ, मतलब जो फील हुआ मेरे को अपनी गेम में चेंज होता हुआ, गेम अवेयरनेस। बिकॉज वहाँ पे भी पूरा इंटेंसिटी पूरी होती है, दिल्ली में आपको पता है कि क्लब लेवल्स में पूरी फाइट चल रही होती है। बट यू लेवल्ड अप, मतलब मैं कह रहा हूँ तू मैच तो खेल रहा है, मैच खेलने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, बट तुम एक बैटिंग कर रहे हो 30 बॉलों में 35 बना रहे हो, 40 बना रहे हो, बट आई सीन योर इनिंग्स, आई एम श्योर दिल्ली क्रिकेट या और मैचेस खेलने से ही बड़ी है, बट कन्वर्टिंग दोज इनटू 30 बॉल 60 रन, 30 बॉल 70 रन, मतलब आई हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। वो कैसे आई सेंटर में जाके? वो भाजी आई से प्रैक्टिस ही हैगी है, बिकॉज जब मैं प्रैक्टिस करने लग गया था ना, वो हिटिंग की लिफ्ट्स की प्रैक्टिस करने लग गया था, तो मेरा वो गो टू शॉट बन गया था। सो एक पॉइंट ये भी था कि अगर मेरे को अपने आप कोई प्रेशर आ रहा है ना, सो जैसे कई लोग स्वीप मारते हैं अपना गो टू शॉट या कोई रिस्की शॉट मारते हैं, तो वो मेरा बॉडी वैसे अडेप्ट होगी थी कि जो बॉल वहां पे आएगी अपने आप ही लगने लग जाएगा। तो अगर वो एक भी आपका गो टू शॉट लगता है तो वो प्रेशर तो खत्म हो ही जाता है। तो फिर वो ऐसी जैसे हमें ड्राइव मारते हैं हम या कट मारते हैं कि जितनी प्रैक्टिस किया बॉडी अपने आप चल गई। तो लिफ्ट का मेरा वो टाइम आ गया था कि जब भी मेरे को उस एरिया में बॉल दिखती तो अपने आप बॉडी की मूवमेंट उस तरफ हो जाती। उसने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज प्रेशर बहुत कम हो गया मेरे पे, रिलीज हो गया। जब भी प्रेशर आता था तो एक शॉट लग जाता था। दिस इज ब्रिलियंट। गो टू शॉट या वो इतना इंस्टिंक्ट्स रिएक्ट करने लग पड़े थे, क्या फर्क पड़ता है मान के पीछे रन लगे या नहीं लगे, तब वो गो टू शॉट थोड़ा हेजिटेंट होते हैं एज अ क्रिकेटर, एज अ बैटर के? इन योर केस मतलब आई नो कि सम प्लेयर्स आर नेचुरली वेरी कॉन्फिडेंट, सम प्लेयर्स कॉन्फिडेंस कम्स कि यार परफॉर्मेंस की हुई है, पीछे रन लगे हुए हैं तो तुम मारते हो। व्हाट डू यू थिंक? भाजी आई फील मेरा इट वाज ऑल अबाउट व्हेन आई गो इन, हर मैच अलग मैच, हर मैच में मैं जाता था, मेरे को अंदर जब मैंने स्टांस रखा मेरे को क्या फील आ रहा है। कई बार ऐसा भी फील आता था कि फर्स्ट बॉल पे ही, चाहे डेज का भी मैच था आपने देखा ही, कि पहली बॉल पे भी फील आ गया तो अपने आप ही बॉडी चल गई। बट आई हैव नॉट फेस दैट थिंग ना कि लगातार
3-4 निकल गए इनिंग्स। भाई हाँ, इनिंग्स निकल गई, अभी परफॉर्म नहीं हुआ, दिमाग पे बहुत ज़्यादा वो लोड ही नहीं आया। 10-12 years whatever I played, I think I've kept on भी हो जे 2 मैच नहीं हुआ तो उਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਉਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਉਹ सोचा ही नहीं मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। नाइस, लवली। आई रिमेंबर जैसे 23 में बहुत अच्छा किया, पंजाब की क्रिकेट मिलनी शुरू हो गई। देन पालम में मैच खेल रहे थे हम, विक्रम सर वाज हाँ द जी, हाँ जी। कोच एंड ऑल मोस्टली यंग टीम थी। हाँ जी। मतलब उसमें बज्जूबा वाज देयर, बज्जूबा ऊपर तब नहीं खेल रहे थे, एंड दैट इज वेयर वी सॉ कुकीरतमान बिकमिंग अ बिगर प्लेयर। मतलब ऑब्वियसली हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, उसमें यू बैटिंग एट 3, बट जो वो अप्रोच थी कि मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, औखी कंडीशन है, सौखी कंडीशन है, ऑलवेज लुकिंग फॉर रन्स। और थ्रू आउट उस सीजन में यू वर वेरी कंसिस्टेंट, उसके अगले 2 साल यू वर वेरी कंसिस्टेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोस 2-3 years डोमेस्टिक में, हाउ वर यू दैट कंसिस्टेंट? एंड दैट ऑब्वियसली यू टॉक्ड अबाउट क्या डोमेस्टिक में तुम्हें डोमिनेट करके ही खेलना, तभी तुम्हें सिलेक्टर भी देखेंगे एज एन इंडियन प्लेयर कि भाई इसको देखो, ये यहाँ पे फंस ही नहीं रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो दैट इज वे यू गेट द अटेंशन एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर। बट अप्रोच यू वुड हैव डन, बट व्हाट डू यू थिंक वो 2-3 साल में व्हाट वाज द माइंडसेट? आई फील वो जो टाइम था वो टाइम पीरियड उसके बाद था जब मैं नहीं खेल रहा था क्रिकेट। सो बहुत इम्पोर्टेंट रोल, आपने विक्रम सर का नाम लिया, विक्रम पाजी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आई फील, बिकॉज जैसे ही वो जिस साल आए थे वो पंजाब में, सो आई वॉज नॉट प्लेइंग एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे ही जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो खेल रहा था, उसमें उन्होंने मुझे देखा एंड देन उन्होंने कहा कि यार ये भी कौन है, भी इसने इतने रन बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत रन बनाए हैं बट इसमें नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। तो तब उन्होंने कहा कि क्यों, वाई आर यू नॉट प्लेइंग, आई सेड सर मुझे नहीं पता। तो देन अपने आप ही बस मेरे को कॉल आ गया था, कैंप में मेरा नाम आ गया, फिर कैंप में ऑल्सो आई स्कोर्ड रन्स। और पहले मैच के बाद जब मैं गया, एक चीज़ विच आई ऑलवेज रिमेंबर, विक्रम सर ने मुझे ये कहा था कि तूने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, कुछ नहीं सोचना, सारे मैच खेलेगा तू, यू विल। और ये कॉन्फिडेंस अगर आपको मिल जाए, एंड स्पेशली आई हैव बीन समबडी जो एक अपॉर्चुनिटी के लिए आई प्लेड कि यार बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसका वो जब उन्होंने कहा कि यार तू सारे मैच खेलेगा, चाहे तू अब ये तेरे पे है, यहाँ सब में आउट हो जाएगा तू, यहाँ तू कर देगा कि बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी, वो चीज़ ने मुझे बहुत यू कैन से कि Confidence, रिलैक्स कर दिया, कॉन्फिडेंस देता, प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो गया उनका। I remember he used to make us write, okay, yaar, what is your game goals for next 5 years? That changed. A lot of players started believing. हाँ जी। A lot of players played for India. उस time पे you played for India, Mandeep played for India, Sandy played सैंडी for also, India, वरिंदर played। Virender played under him, and that I think वो shift बहुत ज़रूरी है as a player और as a team as well, कि यार you're not satisfying yourself कि भाई सिर्फ compete करने आ रहे हो, हाँ जी। you're coming into a tournament to grow as a player and as a team also to win. Same thing Pajupa and Yuvipa did it when they came. When क्या they तुम came तुम to play टूर्नामेंट में तुम domestic। कैसे क्यों खेली जा रहे हो, तुम जीतने के लिए खेलो ना भाई। What do you think about their mindset when they were in Punjab? पर जी आई थिंक उन्होंने भी बहुत यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स थे उनको बहुत मोटिवेट किया, एंड ऑब्वियसली वो वहाँ से खेल के आ रहे हैं, इतने सालों से उस लेवल की क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। Yeah. सो आई फील हमारे लिए तो यही बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमें उनके साथ खेलने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम जब 2-3 साल रेगुलरली जब हम खेले पाजीयरों के साथ, तो थोड़ा फिर बंदा बातचीत करने लग जाता है और वो सब होता है। उसके बाद मुझे लगता है कि नॉलेज जो मिली है ना यूवी पाजी से, बज्जू पा से, वो दैट हैज हेल्प पंजाब क्रिकेटर्स अ लॉट। जितने अब आप यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, ये तब उनका पहला पहला साल या कोई वो होगा Yeah, जब दे वर true. कमिंग। सो कहीं ना कहीं वो जो नॉलेज इनको मिली है, दैट इज यू नो गिविंग रिवॉर्ड्स नाउ फॉर पंजाब। So वो सीजन अच्छे लगने के बाद you got into the IPL team or the Indian team before? नहीं, आईपीएल फर्स्ट ईयर ओनली। Kings 11 was the first हाँ जी। team I remember your first match I was watching. मैं कहा यार I remember mine debut. I was very nervous, so I wanted to see how you approach your debut, and you were very calm. I think 18 बॉले 22 35 25 कुछ हाँ इतना जी। बनाया था हाँ जी। in your first game, but you were very smart
कि कैलकुलेटिव रिस्क कब लिए, मतलब पहले मैच में तुम 25 विन हो तो तुम्हें पता है भाई एटलीस्ट मैनेजमेंट थिंक्स कि हाँ लड़का कुछ कर सकता है, एंड देन फ्रॉम देयर ऑन यू प्लेड अ लॉट ऑफ विनिंग गेम्स फॉर देम एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर कमिंग इनटू द आईपीएल टीम, टॉक मी अबाउट के प्रिपरेशन आईपीएल के लिए कुछ अलग करी थी, एंड टॉक अबाउट द डिफरेंस इन द लेवल अप फ्रॉम डोमेस्टिक टू आईपीएल, प्रिपरेशन अलग की थी कुछ पहले याद ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈਪੀਐਲ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ डोमेस्टिक ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ बिल्कुल ਨਾਲ एक है ना महीने का gap। हाँ 1 महीने का गैप और आईपीएल स्टार्ट बट आई वाज लकी कि विक्रम सर ही उधर थे फिर उसके Kings बाद में। किंग्स में वहाँ पे थे तो वहाँ पे जो भी हमें सपोर्ट जितनी होती थी या गेम में कई बार क्या होता है फॉरेन कोचेज हो डोमेस्टिक प्लेयर्स पहले साल आके थोड़ा सा झिझकते हैं बट विक्रम सर बैटिंग कोच थे तो वहाँ पे हमारे को बहुत हेल्प हुई या किसी के साथ भी कोई भी हमें कुछ भी पूछना था या कुछ था सो वी हैड हिम वो कंफर्ट एक लेवल रहा एंड देन आफ्टर दैट तो रेगुलरली जब खेलने लग गए एक टीम में जब आप खेलते हो तो वो सबके साथ एक कमराडरी बनी जाती है बट आई फील स्टार्टिंग में ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी अ लॉट टू यू नो गेट इनटू दैट जोन ऑफ प्लेइंग बट you don't get that environment in domestic cricket, भाई फुल पैक स्टेडियम है, बॉलर बॉलिंग डालने आ रहा है, समवन who's very bowling over 140 किलोमीटर पर आवर, लाइक इन माय केस मेरे को ग्लेन मैकग्राथ मैंने पहली बॉल फेस करी स्टेडियम पर है, सो आई वाज लाइक भाई कहाँ आ गया हूँ मैं किड्डा शॉन टेट थी शॉन टेट दा Fastest. फास्टेस्ट इन द आईपीएल दैट Yeah. टाइम, वो शॉन टेट दा टिड्जी मारदा है, ਉਹ So- ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ but any difference anything? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਟਰ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਤੇ For the viewers, Gilly. सॉरी एडम गिलक्रिस्ट कहता मेट यू आर प्लेइंग मैंने कहा है मी कहता आया टुडे यू आर प्लेइंग ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਪਹਿਲਾਂ Okay. ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर द ਗੁੱਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ Yeah. ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ But anything you learned from that year from bigger players, how did they prepare? कि उसके बाद जब वापस आते हो आप तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना? preparation I always feel कि सब दी different preparation है Anyone you liked? we cannot judge anybody from their preparation. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਚਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ जैसे ਐਡਮ ਗਿਲਕ੍ਰਿਸਟ ਉਹ बिल्कुल ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ Yeah. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਮੈਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਫॉर दैट ਡੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ what is your best preparation ਮੇ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ that has always been my yeah, thing. you have to be in your best mode. best mode best shape best frame of mind Yeah. when you are in the center ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਘੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਆਪਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ Yeah. which is I think very important visualization ਉਹ ਵੀ that has also helped me Did in you my do it? game a lot अच्छा. I used to do it Okay. and ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰਾਊਡ ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾ ਥੋੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ when you visualize Visualize, so you always already when you're visualizing you're you thinking don't कि go to तुम the unknown you've already been thought there about it. हाँ जी So थोड़ी nerves जो हैं वो काम वो निकल जाती हैं, and how does that make a difference? Nerves कम हो गई. Tell us about it. नर्व्स कम होगी तो आई फील कि तब आप सिर्फ जिस चीज पे ध्यान देने वाला है उधर ध्यान दे सकते हो नहीं तो आपका इधर उधर ध्यान घूमता रहेगा एंड दैट इज द साइन आपको भी पता लग जाएगा कि यस नाउ आई एम इन दैट जोन हर प्लेयर ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ Yeah. ਜਿਵੇਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵਿਕਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲਰ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀਲਡਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲੇ ਨਾਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਫੀਲਡਰ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਫੀਲਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁੱਕਾ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਸ That's brilliant. You know, I've heard this about Dhoni bhai. Dhoni bhai was playing a JP Atre game, so he
he told that to one of his teammates कि यार that is cricket smartness, जो मैंने बोला ना कि you had it in you, वो हमेशा से. तो he said कि यार I'm watching all the fielders. एक तो बैटिंग आनी है आखिरी के 6-8 ओवर में, तो I'm watching all the fielders and then I see कि ये वाला फील्डर तो पक्का ही दुक्के वाला है, और उस पे दुक्का तो लेना ही लेना, जब भी बॉल गई पहला तेज ही भागना है. हाँ जी. So that cricket smartness has always been in you. अब इसके बाद किंग्स के बाद you had a very good India 8 ओवर, और डोमेस्टिक यहीं पे हो रहा था. तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमने अगर इंडिया खेलनी है ना, तुम पहले सही टाइम पे परफॉर्म करना इज इम्पोर्टेंट. तुम परफॉर्म तो बहुत लोग करते हैं, मतलब पहले के टाइम में सौरव गांगुली, सचिन पाजी, राहुल द्रविड़, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग. उस टाइम पे बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स, अमोल मुजुमदार एंड लॉट ऑफ क्रिकेटर्स वर स्कोरिंग लॉट ऑफ रन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. पर वो टाइम ही नहीं था बेचारों का कि वो खेल पाते. सो इन योर केस देयर वाज अ ओपनिंग. हाँ जी. आई थिंक समवन वाज नॉट स्कोरिंग और समवन वाज इंजर्ड. मिडिल ऑर्डर देयर वर प्लेसेस या एंड देन यू स्कोर्ड एंड bowled brilliantly as well. बॉलिंग तो कभी डाली भी नहीं इतनी, इतनी पांदा सी रेगुलर. ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ 'ਚ, ਬਟ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕਲੱਬ ਮੈਚ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ. ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੋਲ. So, but obviously को मानना बड़ी बढ़िया ही रहा, but something you didn't practice much, it was more natural, है ना? So that you performed in both bowling and batting. And talk us about that moment, क्योंकि 8 साल से शुरू किया है. I like to do it with all my guests. वो जो आखिरी वाला जो I think जो बेस्ट फीलिंग इज दैट ओनली कि भाई क्रिकेट खेल तो रहे हैं हम मजे के लिए, पैशन के लिए शुरू करी थी गुरकीरत मान ने भी, पर जाके वो सफर जो है इंडिया की कैप डाल के या इंडिया की जर्सी डाल के ही वो फीलिंग पूरी होती है कि दैट यू फाउंड अ वे कि इंडिया कैसे खेलनी है. Talk us about that. That was a different feeling, and especially ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਏ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, I was very happy because that is also a kind of appreciation to your hard work ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ it's been recognized. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਫੀਲ ਲੱਕੀ. ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਡਰਾਵਿਡ ਸਰ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ 2 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, 3rd ਮੈਚ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੈਟਿੰਗ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ, ਸੋ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਸਰ, ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ. ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ. ਬਟ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਚ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ. ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ. But you came in the team then in ਉਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਟੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਗੇਮ ਚਿੰਨਾ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਉਦੋਂ ਰੈਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਬਣਨੀ ਸੀ ਐਂਡ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸਕੋਰਡ 60-70 ਆਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ. ਉਦੋਂ ਰੈਨਾ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ. But then after that इंडिया खेला, इंडिया के नाम पे आया. What about that first game, ऑस्ट्रेलिया टूर? दैट वाज ऑस्ट्रेलिया. Talk us about that day. जैसे so you talk about कि मैं पूरे दिन में आप कैसा फील कर रहे हो. So debut मैच में गुरकीरत मान कितना फील कर रहे हो? ਭਾਜੀ that feeling तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ it's out of the world ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ. ਐਂਡ ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ 17 ਜਨਵਰੀ, that's my mother's birthday. So I feel it's a blessing by birthday gift ਉਸ ਦਿਨ. ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ whenever ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਯੂ ਹੈਵ that badge. ਉਹ I don't think you can explain too much about that. Okay. But once in a lifetime kind of a feeling. That is. कुछ पाया हाँ. that you feel proud of your hard work. And I think we all did. We all had a proud moment कि भाई हमारे साथ का भाई इंडिया टीम में पहुंच गया है. And I'm sure the coaches, Tinku sir, your family, everyone would have been there. And your relatives, your friends, सारी. But I've been blessed ਭਾਜੀ कि everybody around me has been very nice and very kind to me since childhood only. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਮੈਂ I feel I'm blessed. ਸਾਰੇ बहुत ਵਧੀਆ ਲੋਕ. IPL बहुत साल खेली है. I think 14 साल के आसपास IPL खेली है. RCB और Kings 11 दो ऐसी टीम में. ऐसा सवाल मैं योग सर सवाल ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾਰ.
तो तू दोनों टीमें देखी है, मैंने तो चल आरआर देखी थी, हम जीत गए थे, तूने जीटी भी देखी है, गुजरात टाइटंस जीती पहले साल ही, केकेआर में यू वर द फाइनलिस्ट, बट आरसीबी और किंग्स 11 वर द टीम्स जिसमें ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। जीतते क्यों नहीं गए? ऐसा अरे दोनों इस बार ही हारे जीत ना जाए। हैं। इस बार ही दोनों नहीं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, बट आई स्टिल फील पाजी जीटी हो गया, एमआई हो गया, सीएसके हो गया, आरसीबी ऑल्सो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, प्लेयर्स का बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं वो, बट इसमें परफॉर्मेंसेस तो पाजी यार सारी परफॉर्म करने जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट नोबडी कि कोई गलत वो करने जा रहा है। हाँ, मेरे पहले मेरी बात हुई थी, वो कहते कि बॉलर्स क्यों नहीं अच्छे लेते आरसीबी वाले, बट आई स्टिल फील कि वहाँ पे कोई भी बॉलर जाता है उसको रन पड़ जाते हैं, टीम का माहौल बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बट ऑब्वियसली देयर हैव टू बी सम फैक्टर्स कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इट हैज टू डू अ लॉट विद द होम वेन्यूज आल्सो, होम वेन्यू पे जो टीम डोमिनेट नहीं करेगी, आई डोंट थिंक उसके चांसेस हैं आईपीएल जीतने के। वेरी ट्रू, शेन वॉन यूज्ड टू से दिस टू अस कि यार अपने घर को तुम किला बना हाँ दोगे, जी यहाँ पे जीतने जीतने मैच, बट पाजी, आरसीबी यू थिंक इज नॉट आप डूइंग। देखो सक्सेसफुल जितनी भी टीम्स हैं, हु वन सीएसके हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, हु वन इट ज्यादा बार आईपीएल, वो उन्होंने अपने फोर्ट्रेस ही बनाया हुआ है अपने घर को। कोई भी टीम है, इफ यू नो कि आपके आधे जो गेम्स हैं वो किस हिसाब की इन्वायरमेंट में होने हैं, किस हिसाब की विकेट है आपके पास, तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड ये नहीं कि आप विकेटें ऑल्टर करवा रहे हो, बट आपको जेन्युइनली आपने कैंप लगाए होते हैं उस सिचुएशन में, आप सारा आपको ग्राउंड का पता होता है, और अगर आपको उस हिसाब से आपने कॉम्बिनेशन खिला दिया विच सीएसके का आपने देखा इतने साल जो पिछले थे, वो दे डोमिनेटेड आईपीएल बिकॉज कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे खिलाते थे, अकॉर्डिंग टू विकेट्स कॉम्बिनेशन खिलाते थे, अकॉर्डिंग टू द पिचेस। ये चीज़ आई थिंक बहुत मैटर करती है, और पंजाब और आरसीबी आई फील अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, इट कैन बी ड्यू टू दिस ऑल्सो। इवन दिल्ली, जो या दिल्ली दिल्ली की भी टीम नहीं है, जीती है या। आई फील उनका भी भाजी विकेटें जब हमें पता होंगी, अपनी होम टीम को अपनी विकेट्स का पता होगा, तभी आप अपनी स्ट्रेंथ और अपना कोर ग्रुप ऑप्शन में डिसाइड कर सकते हो या कि हमारी विकेट्स इस हिसाब की है, ये हमारा कोर ग्रुप होना चाहिए। अगर आपकी विकेट्स का ही आपको नहीं पता, जिस दिन आप स्पिनर ज़्यादा खिला रहे हो उस दिन विकेट कुछ और करने लगी, जिस दिन फास्ट बॉलर खिला रहे हो उस दिन घूमने लगी या स्लो होगी विकेट, तो ऐसी चीज़ें बहुत आई फील मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती। अब रिकी पॉन्टिंग आया है, मे बी ही हैज समथिंग टू डू विद द कल्चर, उन्होंने कहा है कि हम टीम का कल्चर चेंज कर रहे हैं, अप्रोच चेंज कर रहे हैं, श्रेयस आ गया, ही इज बैटिंग रियली वेल, सो होपफुली हम तो पंजाब से हैं, हम तो यही कहेंगे कि मे बी दिस इज द टाइम कि अब से पंजाब स्टार्ट्स डोमिनेटिंग। यू थिंक बैकिंग ऑफ अ प्लेयर और अ कोच दिल्ली ने, आरसीबी ने या फिर किंग्स 11 ने इतनी करी है बाकियों से कंपैरेटिवली? नहीं, आई फील कि ऑब्वियसली भाजी, अब आप देखो कई प्लेयर्स हैं जो इतने इतने सालों से उस फ्रेंचाइज में अपनी अपनी फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, बट यहाँ पे इन टीम्स में बहुत कम एक दो आपको मिलेंगे, बट बाकियों ने अपने कोर ग्रुप मेंटेन किया है एग्जैक्टली। कि एवरीबडी कोई 5 बंदे रिटेन है या किसी में कितने बंदे हैं, सो दे कीप अ सिमिलर काइंड ऑफ अ लिस्ट, ताकि प्लेयर्स भी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हों, या सो दैट एवरीबडी नोज देयर गेम। एवरी टाइम यू आर कमिंग, आप कितनी देर पहले आते हो, 10 दिन पहले आ जाओगे, 15 दिन, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर कमिटमेंट्स, या किसी की इंटरनेशनल कमिटमेंट, किसी की कोई कमिटमेंट, सो बाहर से भी जब आते हैं, अगर यहाँ पे ही पहले प्लेयर्स की आपस में कमराडरी नहीं है पूरी, बाहर से आके तो फिर वो सारी खिचड़ी पक जाती है। दूसरी जो मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उनका ये सिस्टम है कि वो अपना एक कोर ग्रुप सेम रखते हैं, इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स भी काफी सिमिलर होते हैं जो खेले हुए हैं उनकी तरफ से, दे नो कि क्या माहौल है यहाँ पे, तो वो आई थिंक जरूर हेल्प करता है। व्हाट अबाउट प्लेयर्स लाइक विराट एंड एबी, यू वर देयर विद देम उस सीजन में और ऑल दोज इयर्स, यू थिंक उस एज अ प्लेयर, मतलब आई हैव टॉक्ड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स अबाउट दिस बट यू हैव सीन हिम क्लोजली, you think उसका scale every season of performance changes or increases if you see Virat? जी, विराट भाई जी, तो मैं इको ही गल कहूंगा, व्हाट आई फेल्ट वाज, आई यूज्ड टू टेल शुभमन आल्सो कि ही इज नॉट दैट टाइम, दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इन आरसीबी, चलो
कि he is not only the number one batsman in the world matches में, even in the nets he is the number one. That is what I feel. जब मैं उसको देखता था nets में क्या intensity है, या हम कह देते हैं कि यार same intensity से net में खेलना है, मैच वाली intensity चाहिए, but if I see, अगर मैं देख रहा हूँ, I don't see it in 99% of the people. वो मैच कर ही नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल ओनली कि आप मैच वाली इंटेंसिटी नेट में वो कर लो. द क्लोजेस्ट जो मैंने अपनी देखा, दैट वाज विराट कोहली. जो मैच की इंटेंसिटी को नेट की इंटेंसिटी के साथ जो मैच होती, मैंने अपना डिफरेंस फील किया, वो विराट कोहली था. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज अ गोट, द ग्रेटेस्ट इन द गेम. बिकॉज वो पाजी डिफरेंट लेवल, जज्बा कह लो आप, या वर्क एथिक कह लो, वर्क एथिक सबसे सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला प्लेयर वहाँ पे. एंड आई समहाउ फील कि शुभमन का भी यही, आई थिंक जो चीज़ है दैट मेक्स हिम डिफरेंट. जो उसके एज के या उसकी कैटेगरी के जो प्लेयर्स भी हैं, शुभमन इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड. वो उसका वर्क एथिक बहुत अच्छा है. उसका प्राइमरी फोकस इज द गेम. इसके अलावा मेरे को कोई ये चीज़ है जो विच आई हैव टू डू. और ये चीज़ें आई फील समहाउ डाउन द लाइन धीरे धीरे बिल्ड करती रहती है आपका कैरेक्टर, आपको बड़ा बनाने में. अभी शायद लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती कई प्लेयर्स को, बट आई फील ऑल दीज थिंग्स डू मैटर. But if we're talking about Shubman and Virat, I'll ask the main question. Obviously, people think he's the king, he's the prince. What do you think? एक विराट कोहली है, एक शुभमन गिल क्या है. बात है. बोथ ऑफ देम हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिटी. दोनों ही राजे हैं, दोनों तगड़े प्लेयर हैं. एंड कंपैरिजन तक कोई है ही नहीं है. Yeah. दोनों आज कोई कंपैरिजन नहीं. The main thing is both of them give more than their 100% for the country. जो ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी जो बात. Nicely said. But if you compare to his time when Virat was, मतलब as you said ना कि शुभमन की priority is game first. But it is increasing a lot. जितनी ये social media attention, जितनी brands chase a lot of bigger players. Virat, I remember at the time, used to do 15 shoots in a month. और मतलब obviously Shubman is growing. There are more players. Ab Shreyas is doing very well. A lot of brands will be going after him. Yashasvi Jaiswal and many more. I might be missing a few. How difficult it is to balance it. Here it is a very thin line. यार I can be very easily distracted. कल मैच है, मैं 12-1 बजे तक शूट ही करी जाना. So next day you're not gonna be at your peak. How you think those players manage balance it? जी आई थिंक ਅੱਜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ हम सिर्फ बात करते हैं कि जो ग्राउंड में हम क्रिकेट खेल रहे हैं इस एस्पेक्ट की, बट ये जो दूसरा एस्पेक्ट गेम में आया है, सोशल मीडिया हो गया या आपका जो एडवर्टाइजमेंट की कमिटमेंट्स होगी, इसका नोबडी लुक्स एट दैट, या इसको लोग नहीं इस चीज पे ध्यान देते. बट ये भी बहुत ज्यादा, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन यू. आपकी टाइम का जो आपका बैलेंस जो आपको करना होता है, वो टाइम का बैलेंस सारा खराब हो जाता है. और यही जो प्लेयर्स हैं, जो यंग, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इन चीजों में ध्यान रख के वो आर गिविंग देयर टाइम टू द गेम, वही आगे जाके आई फील सक्सीड भी लंबे टाइम तक वही कर पाएंगे. जिनका फोकस नहीं हिलेगा, जिनका बैलेंस नहीं हिलेगा, बिकॉज ये चीजें तो आएंगी एट अ यंग एज. whoever has a good mentor कह लो, या who tells them कि भाई this all these things are temporary. your game जो है सबसे पहले उसकी वजह से ये सब चीजें आपके पास हैं. so any player who recognizes this point कि अगर गेम है तो बाकी सब कुछ है, अगर ये सोचेगा कि बाकी सब कुछ है वो तो हो जाएगा, वो फिर he's heading down I feel. Brilliant. Do you think Shubman looks at you as a mentor or as a best friend or? I don't know. I think ये तो थोड़ा उसको पूछना पड़ेगा आपको, बट आई फील इट्स मोर ऑफ फ्रेंडली या ब्रदरली रिलेशनशिप. क्योंकि छोटे होते से ही वी बीन टुगेदर, कोई भी बात होती है, फिर मोहाली से खेलने लग गए, क्लब मैचेस हम जाते होते थे इकट्ठे. एंड सो आई थिंक इट्स अ ब्रदरली काइंड ऑफ रिलेशनशिप. बट यू राइटली सेड अबाउट हिम कि नेट में, मतलब जैसे अब बैलेंस करने की बात है ना, तो उसकी प्रायोरिटी क्रिकेट है. आई वाज देयर इन दुबई. आई वाज वाचिंग इंडियाज प्रैक्टिस बिफोर द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी. सो देयर वाज एन ऑप्शनल सेशन. So only Rohit bhai was there, Shubman was there, and they batted for a lot of hours. So that shows कि भाई अगले दिन final है.
मतलब डिफरेंट रूटीन अब हाँ इन जी। योर केस यू नेवर यूज्ड टू लाइक टू I बैट I yeah. मैच से पहले यू नेवर यूज्ड टू वही मैं कह रहा हूँ कि everybody has बट दैट प्रायोरिटीज है yeah. एवरीबॉडी हैज देयर ओन प्रिपरेशन स्टाइल शुभमन को आई फील ही recognizes एंड दैट उस लेवल पे जाके हर प्लेयर को अपनी गेम का ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पीक परफॉर्मेंस कैसे आती है या किस रूटीन से आती है या क्या करके आती है। शुभमन का आप देखो शुरू से ही ये होगा कि अगर मैच के पहले वो बैटिंग नहीं करता है 2-3 दिन पहले आप देखोगे बैटिंग कर रहा है वो पूरा बिकॉज ही वांट्स दैट फील कि मेरे को वो फील आए। और वर्क एथिक तो हमें पता ही है कि ही हैज वन ऑफ द बेस्ट वर्क एथिक्स। बट आई रिमेंबर वन थिंग अबाउट सुमन वी वर प्लेइंग अ मैच अंडर नॉट अंडर 19 एक्चुअली सीनियर्स कुडू शील्ड का ही मैच था हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट्स जो होती हैं सो उसमें मोहाली वर्सेस जलंधर का मैच था आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट गेम व्हेन आई सॉ हिम प्ले T20 नहीं 50 ओवर और 50 ओवर गेम अच्छा था वी वर प्लेइंग इन जलंधर में बटन ओ बाग एंड आई सॉ हिम बैट मतलब आई थिंक ही स्कोर्ड 60-70 रन्स अगेंस्ट अ डिसेंट अटैक उस टाइम पे बट what I what I remember is the way he batted to those bowlers and the way he bats now at international level. जो वो स्टैंडर्ड सेटिंग है ना उसकी इट्स ऑलवेज द सेम इट इज नॉट अबाउट कि यार अभी मैं एक लेवल या 2 लेवल ऊपर जा रहा हूँ तो आई स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अ बॉलर डिफरेंटली इट्स ऑलवेज दैट डोमिनेशन इट्स ऑलवेज अबाउट बैकिंग हिमसेल्फ कि मैंने अपनी शॉटें खेलनी खेलनी नहीं ये ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਹੀ इज ऑलवेज प्लेड दोज शॉट्स और अंकल भी उन्होंने यही चीज के लिए अंकल भी इनकरेज करते रहे हैं कि तू अपने शॉट मार ज्यादा रोकने पे अंकल ने कभी फोकस भी नहीं किया। अंकल हमेशा होता था कि और अगर कभी ये भी कह देते ना कि नहीं ये नहीं लगेगा इस बॉल को तो फिर वो कहते थे नहीं ऐसे कैसे नहीं लगेगा लगेगा मार। अच्छा जैसे वो शॉर्ट आर्म जैब जो वो मारता है yeah तो मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता कि नहीं लगेगा मार मार के अब मारता है वो रेगुलरली ही प्लेज दैट शॉट। वेरी इंटरेस्टिंग दैट डिफेंस करना कभी अंकल ने उसको उसके हाँ, उसके अंकल ने डैड ने कभी कभी बोला ही नहीं वाला हाँ रिमेंबर आई हैड चैट विद हिम एंड ही सेड डिफेंस करना सिखाया ही मेरी रनों की गेम है ना विकेटों की गेम है। ओके अगर हम आई फील कि अगर हम डिफेंस करना भी वैसे तो डिफेंस करना ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी वो है या और बट फिर भी अगर हम उसी बॉल को डिफेंस वाली बॉल को शॉट की प्रैक्टिस कर लें तो हम वैसे पक जाएंगे। तो अपने आप को पकाने की बात है कि कैसे शुभमन की टेक्निक देख लो आप उसमें कई ऐसे शॉट्स हैं जो नॉर्मली नहीं मारते उन बॉल्स को मतलब उन बॉलों को। अभिषेक देख लो आप उसका भी सेम सिनारियो आई रिमेम्बर ही वाज आई थिंक 17 और समथिंग हम चेन्नई में हम 1 महीना रहे इकट्ठे वी प्लेड अभिषेक एंड मी तो वो वहाँ पे बाजी जो उसने बैटिंग की दैट टाइम उसको देख के भी ऐसा ही लग रहा था कि ही इज आल्सो लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड और ये भी ही विल डू समथिंग। उसके बाद वो अपना करता रहा धीरे धीरे अब उसने मेहनत जब शुरू की तो अब रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यू थिंक वी टॉकिंग अबाउट डिफेंस क्यों इतना करना है मतलब यू इवेंचुअली सब करते भी हैं शुभमन भी अभी ये नहीं कि डिफेंस ही नहीं करता है इंटरनेशनल लेवल पे बट इट इज जस्ट दैट मार्जिन ऑफ एरर एज अ बॉलर इज वेरी लेस टू दैट काइंड ऑफ बैटर कि जिसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं एंड वी यूज्ड टू से थिंक यार अच्छा बैटर इज समवन जिसको एक ही बॉल पे ही पर्सन कैन डू टू थिंग्स मतलब रोक भी सकता है इस पे 2 तरीके की शॉटें भी मार सकता नहीं ये तो ऑब्वियस आई फील पाजी उस लेवल पे तो जो भी प्लेयर खेल रहा है उसके पास है वो चीज़ है या ट्रू दैट इज व्हाट आई फील। और डिफेंस का पाजी मैं आई एम नॉट लाइक सेइंग अगेंस्ट मतलब वो बट आजकल आप क्रिकेट देखो किस किस डायरेक्शन में जा रही है 250 रन तो एवरेज हो गया कई गुड विकेट्स या पाटे विकेट पे आप अगर डिफेंस करोगे तो आज की डेट में तो you'll ओनली गेट इनटू नेगेटिव वो मोरओवर आज की क्रिकेट ये है यू जस्ट गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम देख रहे हैं आईपीएल होगी या कोई भी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में लोग आगे बढ़ के मार रहे हैं रिवर्स स्वीप मार रहे हैं सारा कुछ जो भी चल रहा है। सो आई फील कि अब गेम ही वैसी हो गई है एंड पीपल आल्सो लाइक द पीपल जो रिस्क लेते हैं उनको वो रिस्क फैक्टर देखना पसंद है। आईपीएल में भी इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि टीम्स भी अपना पूरा वो चेंज कर रही हैं। सो क्रिकेट इज गोइंग इनटू अनदर डायरेक्शन आई फील और उसी के साथ साथ हमें गेम भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम पिछली उसके साथ रह जाएंगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं ना धीरे हो जाते हैं। आजकल कोई कर ही नहीं रहा डिफेंस। वेरी ट्रू ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। okay going to a player who someone
who actually changed the game. मतलब 360 प्लेयर कहते थे हम उसको, और ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं. यू वर देयर इन दैट ड्रेसिंग रूम. हुआ कभी ऐसा कि पूछा हो एबी डिविलियर्स से कि भाई क्या बैटिंग करते हो, थोड़ा हमारे पे सिर पे भी हाथ फेरो? आई हैव सीन यू प्ले सम काइंड ऑफ शॉट्स आफ्टर दैट, बट कुछ हुई पर इंटरेक्शन? ये आई फील एबी तो नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो हॉकी भी खेलते थे, फिर उसके बाद टेनिस होगी, तो ही इज़ प्लेड एवरी गेम. वो तो मुझे लगता है नेचुरली हर गेम में इतना अच्छा है. टेनिस का भी आई रिमेम्बर, हम दुबई में थे, वी वर सिटिंग, और साथ में प्रैक्टिस चल रही थी, और एबी वाज नॉट लुकिंग देयर. वो बस ना सिर्फ आवाज़ सुन के बता रहा था कि कौन सा शॉट अच्छा है और कौन सा नहीं, और साथ में फिर कोच भी कहता जो उसको करवा रहा था बच्चे को, या दिस इज गुड, दिस इज. तो वो हर गेम का ही उसको इतना वो ज़्यादा वो है, आई फील वो एबिलिटी है उसमें नेचुरल. यहाँ बचपन से सब खेल के आया, ही इज मेंट फॉर स्पोर्ट्स ओनली. वो तो बहुत नेचुरल एबिलिटी है. क्रिकेट में भी आई फील इट्स जस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि मैं कोई भी शॉट खेल सकता हूँ. आधे आधे प्लेयर्स तो आई थिंक इसी उसमें फंसे हैं कि क्या मैं ये खेल सकता हूँ, या क्या मैं ये कर सकता हूँ ये शॉट. ऊपर से जब एक बार आपने माइंड सेट कर लिया अपना, बेबी ने एक बार अगर सेट कर लिया, तो ये उसका हॉकी की वजह से वैसे ही स्ट्रांग है. एक बार उसने ये चला दिया, फिर एज ए बैट्समैन आपको भी पता है, अगर हम एक शॉट मार दे, कॉन्फिडेंस अगर हमें आ जाए उस शॉट पे, तो फिर वो गेम बदलती रहती लाइक है. वी से कि एक शॉट प्रैक्टिस तो किया नेट में, बट अगर एक बार मैच में तुमने वो मार दिया, एक दैट बार शॉट लग जाए स्टेज फिर विद यू. खुलता है, आप अंदर से आपका वो आपा चाका कह देते हैं, हाँ, चाका होता है, चाका और खुल जाता दैट शॉट स्टेज विद यू कि है. हाँ भाई हाँ भी मेरी स्ट्रेंथ बन जी. सकती है, बन रही है. पर ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਸ਼ਾਟ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਕ ਨੋਰਮਲ ਆਪਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਾਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੀਕਲ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੇਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ, और वो ये कहते ਸੀ ਵੀ मैं ਆਪਦੀ बॉडी पोजीशन लेके आनी है whenever, जब भी मेरी बात हुई एबी से, क्योंकि वी यूज टू बैट टुगेदर ऑल्सो, आगे पीछे 4-5. तो उसके बाद नेट में जब हम इकट्ठे, क्योंकि पेयर बन जाते हैं, तो उसमें भी वो यही कि मैं नेट में सिर्फ अपनी बॉडी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ. इन अ मैच योर इमेजिन देयर मस्ट हैव बीन गेम्स जिसमें यू चेजिंग ओवर 10 रन्स पर ओवर, क्या डिस्कशंस होती थी विद एबी? आई स्टिल रिमेम्बर, राजस्थान के साथ था मैच, तो उसमें तो वी हैड 16 एन ओवर, वी वांटेड 16 एन ओवर, और मी एंड एबी वर प्लेइंग. उसमें भी ही वाज जस्ट लाइक कि वील गेट इट, डोंट वरी, वील गेट इट, एंड जस्ट ट्राई एंड, आई थिंक ऑस्टम के बाहर की फील्ड ली थी, उसने कहा था जस्ट ट्राई एंड मूव एंड क्लियर द पॉइंट. तो बस वहाँ पे जब वो बात हुई, उसके बाद बैटिंग उसने जिता ही दिया मैच. ये भी जैसा प्लेयर है. बट देयर नो कैलकुलेशंस गोइंग कि यार इस ओवर में 15 ही मारेंगे और उसके बाद हम नहीं, देखेंगे, या इस वो बॉलर को टारगेट करो, ऐसा कुछ बोलता था? उसने कहा था कि जैसे फर्स्ट बॉल पे अगर हिट आ गई, सो फिर विल गो ऑल आउट फॉर दैट ओवर. बिकॉज कई पुट बार क्या प्रेशर होता ऑन है द कि बॉलर. सम ऑफ द पीपल थिंक कि अगर हमारा पहली दूसरी बॉल पे आ गया, तो फिर हम ओवर को ईज आउट करते हैं. बट वही, इफ यू लुक एट द अदर वे राउंड, एबी जैसे वो ये सोचते हैं कि अगर पहला आ गया तो ही इज अंडर प्रेशर, सो इसको और प्रेशर में डालो, यू कैन गेट मोर आउट ऑफ दैट ओवर. I remember you have been a very special batter for most of the teams you played. So one of the Punjab teammates used to say, "Man Saab the class ही अड्डा है." Golu used to say this. But you've won so many games, especially while chasing. I think you were one of the best finishers, at least in domestic and in IPL as well. What do you think? क्या reason है for being a very good finisher in? मतलब how are you a match winner? But yeah, I feel to finish games, सबसे important चीज़ है to have faith in yourself, to have faith in your ability. And माही भाई से भी I remember जब मेरी बात हुई ना कि finishing के बारे में, so he also said the same thing कि the first thing is कि you have to believe in yourself. और गेम को अब जैसे अगर हम उनकी बात करें, वो कहते हैं, अब मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, सो आई लाइक टू टेक इट टू द एंड, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मैं 4 बॉल पे 4 छक्के भी मार सकता हूँ. बट अगर मैं पहले उस सिचुएशन में आउट हो गया, तो फिर मैच वैसे तभी हार गए हम. 15 ओवर 20 ओवर पहले ही हार चुके हैं. अगर एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हम बात करें, जो 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो वो आपका लास्ट या सेकंड लास्ट रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन है. अगर वो 15 ओवर पहले आउट हो गया, तो मैच तो आप वैसे ही हार गए. So take it. So if you take it till the end and you have faith in yourself, आपको अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है,
more often than not I think you can cross the line. So having बस faith is one. What हाँ else? जी, क्योंकि लास्ट में उन्होंने माई भाई ने ये कहा था कि लास्ट में इट्स ऑल अबाउट प्रेशर, हु हैंडल्स द प्रेशर बेटर, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है। अगर ओवर में 20-25 रन भी है तब भी बॉलर पे ही प्रेशर है। So सो वो प्रेशर की गेम है, जो प्रेशर जिसने हैंडल कर लिया बॉलर और बैट्समैन में से, लास्ट में ये है, लास्ट में अपना जितना क्लोज लेके जा सकते हो लेके जाओ। but okay, if माही भाई and you are batting, 2 ओवर में चाहिए 30 रन, लास्ट ओवर बुमराह ने डालना है, will you go in that 19th over or will you go in the 20th दो over में कि 30 में तो जाएंगे ही जाएंगे भाई। 19 में 19 में भी उड़ा दी शुरू हो। तो उसमें लास्ट में नहीं, so being Yeah. smart कि भाई ओवर किसका पड़ा है। नहीं 2 में 30 नहीं, वो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 10 ओवर पहले आपकी बारी आ गई, 8 ओवर पहले बारी आ गई आपकी, तो आप लेके जा रहे हो उस गेम को। Yeah. उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 में 30 है तो आपको पता है यू हैव टू गो फॉर इट, उसमें तो कोई नहीं, बट थिंकिंग कि हाँ लास्ट ओवर अगर इज बुमराह अगर माही भाई भी वो है ना, बिकॉज इफ ही हैज अ बॉलर विद with हिम him, मैं यहाँ से तो you and माही भाई तो डिफरेंट सिनेरियो रहता है। जब 2 बैट्समैन है तब तो दोनों ही आई थिंक दोनों ही जाते हैं फिर Yeah. कि विल गो फॉर इट। अगर एक आउट हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेंगे। Okay, coming back to your stint when you were in Indian team, 3 मैच ही खेल पाया, but those lessons as a cricketer, any young cricketer watching, listening now, you if you look back कि मैं 3 ही खेल पाया यार, I should have played more. What do you think? What क्या दोबारा से अगर रिवाइंड करके 3 मैच की जो वो सीरीज मिली ऑस्ट्रेलिया टूर की, क्या चेंज करना चाहो, मतलब उसमें क्या चेंज करना चाहेगा? But yeah, honestly, I feel I'm lucky. I'm grateful that मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि खेलने दो। I've got that opportunity। इतने लोग हैं हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में जो अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं and who didn't get the opportunity. I am the lucky one कि I did get it. ठीक है, you got So it. सबसे पहले तो यही चीज़ है, Okay. बजाय कि मैं ये सोचूं कि यार सिर्फ 3 ही क्यों, Okay. मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे वो 3 मौके मिले, that is also। उसके आगे उसके आगे you could have played 15 games man, मतलब अरे that the potential जो तेरे में था ना, खेलने को क्या है भी। I feel if you कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूं, I didn't perform also पाजी in the opportunities। That I know, you're very honest. I have always wanted just a single opportunity, but अगर मैं उस हिसाब से सोचूं I got 3 opportunities। Yeah. तो मुझे तो ये होता है कि whenever I get the opportunity I have to, है ना। Hmm. तो उस हिसाब से तो I got the opportunity, नहीं वहाँ पे इतना I couldn't perform, but when I came back I performed in domestic cricket। तो सारा वो मैं करता रहा, जो प्रोसेस है वो मैं अपना फॉलो करता। Did you analyze कुछ टेक्निकल था कि मैं मतलब I'm talking about a youngster who's in a similar situation, उस सीरीज में दोबारा ऑस्ट्रेलिया टूर पे जा रहा है, उसका डेब्यू टूर है, and did you face any challenges जो उसके लिए तू प्रिपेयर नहीं था? And maybe now you know, so maybe if you do that again in that situation तो better कर पाएगा। What do you think about that? पर ये वही Good कहते हैं question. ना, I feel उस सिचुएशन परफॉर्म ही कर सकता था यार और तक Okay, you were prepared but just didn't Yeah. execute नहीं Yeah. होया, but you were वो भी prepared. बहुत मैटर करता है, एग्जीक्यूशंस जिਵੇਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਚਾਂ 'ਚ, ਉਹ that also you know Yeah, that 12 also over can be पड़े। taken in account, but at the end of the day ਜਿੰਨੀ ਵੀ opportunity ਮਿਲੀ हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। that is the reason। that is great attitude and great mindset जो हर एक को सोचना चाहिए। that is lovely. Okay, coming back, domestic काफी क्रिकेट खेला, पर क्रिकेट जल्दी छोड़ दी, मतलब I think you were 33 when you left. हाँ जी 30। You started the next innings, we want to talk about it, but why leaving early? मतलब 33 में you were the main player of Punjab. I always had that thing कि जब मेरे को खुद को फील होगा कि now I cannot play for the country, जब मेरे को खुद को, बाकी मैं ज़्यादा, आपको पता है कि ज़्यादा ओपिनियंस इतने सुनता नहीं, बट मेरे को जब खुद को फील होने लग जाएगा देन I'll probably think of giving way for someone, कोई और आके अपनी अपॉर्चुनिटी वो कर ले। सो ऐसी 3-4 चीज़ें थी, इसीलिए आई थॉट कि यार मे बी नाउ इज़ द राइट टाइम। आई हैव अभी मेरे को एज अ क्रिकेटर मेरे पास 4-5 साल हैं टू प्ले क्रिकेट। सो अब मैं वापस आया, जब बैक इंजरी हुई थी उसके बाद मैंने रिकवरी की, अब आई फील गुड और लीग्स खेल रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ अपनी गेम।
at the end of the day it's about Yeah. playing पाजी जब आपका पैशन हो, जब आप किसी चीज को और you love something, उसके बाद तो फिर अगर आप खेल रहे हो तभी मजा है, नहीं तो फिर मजा नहीं है। नाइस। मान साहब हम सोचते तो हैं यार कि क्रिकेट छोड़नी है, एंड में यू टेक अ डिसीजन कि भाई हो गया पंजाब, मतलब अब लेफ्ट पंजाब, अब लेफ्ट प्रोफेशनल क्रिकेट तो नहीं कहूँगा, अभी भी प्रोफेशनल ही है, पैसे ले रहे हैं खेडन ली, बट व्हाट इज हाउ इज लाइफ आफ्टर आईपीएल और इंडिया, आई वुड से कि ये जो जो लीग्स वाली लाइफ है और लाइफ आफ्टर क्रिकेट, चल हाउ इज इट, हाउ डिफरेंट इट इज? मेरी लाइफ I'd say मेरी तो it's always been good, been blessed, it's a blessed life, कंटेंट है तो लाइफ? और सब कुछ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਈ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪਲੇਇੰਗ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਡਲ ਜਾ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟਡ ਪਲੇਇੰਗ ਅਗੇਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਲੀਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ देयर आर लॉट ऑफ लीग्स जो हो रही हैं, सो दैट इज कीपिंग मी एक्टिव। बाकी दिने आई गो टू द फार्म, इत्थे आई रन अ डेयरी फार्म ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋ देयर ਲੀਗਸ ਖੇਡਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ। Lovely. I like that routine of yours. Cricket खेल रहे हैं, then going back to your business or your farm life. हाँ जी। But एक चीज मुझे लगती है कि लीग्स आने से ना एक नया चैप्टर फॉर लॉट ऑफ क्रिकेटर्स, elite cricketers have started. We would want to know how the process is, but before that, एक चीज की opportunity I think you got, which a lot of cricketers dream of, कि यार काश एक दिन भगवान के साथ खड़े होने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, एंड इन द एंड बैटिंग करने का मौका मिले। मतलब यू बैटेड विद सचिन तेंदुलकर, सर सचिन तेंदुलकर, डिफाइन अस, फर्स्ट you met him in the dressing room and then batting with him in the middle. इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग बाजी, वो उनका डिफरेंट हो रहा है। आपको पता ही है कि सचिन सर जब भी जहाँ पे भी होते हैं वो अलग ही दिखते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। और यहाँ पे भी आई आई रिमेम्बर मैच के बाद भी समन आस्क्ड मी दैट कि तू जल्दी हो गया, तो मैंने कहा अगर वो होता तो फिर ये नहीं हो सकता था जो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, सचिन सर के साथ बैटिंग करनी है। अगर मैं वहाँ पे होता तो इधर ना होता। तो वो कहते कि हाँ बात तो सही है। Yeah. तो यही था कि वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम हैप्पी डूइंग दैट, और इट्स कीपिंग मी कनेक्टेड टू द गेम, गेम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं जैसे, नहीं तो बचपन में तो सपने ही आते थे कि यही सचिन सर के साथ कभी बैटिंग करे, और अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया और बैटिंग भी की हो, लकीली एक मैच में ओपन भी की उनके साथ। तो आई थिंक आई रिमेम्बर दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। I think वो इट विल ऑलवेज बी चेरिश्ड दैट मोमेंट। that will stay with you forever. I think वो that तो है special memory. बिल्कुल। Anything in the middle you were saying कि यार चौका देख, ऐसी नहीं, वो कह रहे थे बस टाइम करने को देख, ज्यादा जोर नहीं लगा, पावर नहीं यूज करनी, टाइम करने को देख, बॉल अच्छा आ रहा है बैट पे। Is he still the same? Like I know कि Passionate, he's so I think serious. He used to be very definitely serious. नहीं, अभी भी वही माहौल है लीग Definitely. इसमें, He- इंटरनेशनल लीग में? आई थिंक IM ही हैज द सेम पैशन, और वही सेम हमारी रूटीन्स, प्रैक्टिस सेशंस और टीम के गेट टुगेदर्स और टीम की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है जो नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट मैच, बिल्कुल सेम। तो वही हंगर और पैशन कभी भी, आई डोंट थिंक उनमें से कभी वो चीज़ जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग वाज जब पहले दिन हम मिले, ही जस्ट सेड वन थिंग कि वी आर ऑल हियर बिकॉज ऑफ क्रिकेट, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस गेम कि इसने हमें सब कुछ दिया है जो भी है। एंड दैट वाज अ वेरी आई थिंक हार्ट वार्मिंग स्पीच जो उन्होंने पहले जब हम इकट्ठे हुए कि अगेन वी आर प्लेइंग फॉर द कंट्री, सो रिमेंबर दैट एंड यू नो वेयर दैट बैज विद ऑनर। क्या बात है भाई, तो जब बोलते होंगे तो मन करता होगा भाई और बोलोगे थोड़ा सा और। मैं Keep जब talking पहले भाई। मैं ना ड्रेसिंग रूम में बता रहा था, जब जब बैटिंग करने गया ना मैं, तो मुझे पहले एक दो ओवर तो ऐसा ही लगेगा कि टीवी चल रहा है, ये टीवी में ही देखते हैं क्या। मैं कहा, यार ये तो टीवी चल रहा है भाई।
ਆ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਡਰਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸ ਏਜ ਚ ਵੀ क्या बैटिंग क्या बैटिंग की यार, बैटिंग कर नेक्स्ट रहे लेवल। स्टिल अपर कट का सिक्का अभी भी मारा और प्रैक्टिस सेशंस पर ये आधा पौना पौना घंटा बैटिंग प्रैक्टिस सेशंस ही इज द रियल इंटेंसिटी हुई या ही सेम इंटेंसिटी, ही इज द रियल गोट। रियल गोट या डू यू थिंक उनकी मोटिवेशन इन दैट लीग, वी जस्ट वॉन दैट लीग, है ना, वो जब पहले खेलते थे 2011 वर्ल्ड कप, ऑल द प्लेयर्स वर मोटिवेटेड कि यार ये जीतनी है। तो नाउ इस लीग में आईएमएल, राइट, तो इसमें भी वो मोटिवेशन सब प्लेयर्स की थी। डेफिनेटली आइड से आप लगा लो यूवी पाजी हो गए इरफान भाई हो गए सारे प्लेयर्स थे और उनके एफर्ट से ही आपको पता लग जाएगा कि एवरीबडी वाज मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप थे सब लोग एंड यहाँ पे भी दे वांटेड टू डू इट कि सचिन पाजी की के लिए भी हैव टू विन इट। अच्छा, और I saw ग्राउंड में आ रहे हैं वो खेल रहे हैं आई थिंक दैट इज ओनली अ वेरी बिग थिंग। Yeah. और उनके लिए जितने भी लोग वहाँ पे होते हैं वो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो यही था कि एवरीबडी वाज मोटिवेटेड कि अगर सचिन सर हैं टीम में तो भाई जीतना ही है जो मर्जी हो जाए, गिव योर एवरीथिंग। यूवी पाजी डाइव मार के कैच पकड़ रहे थे यार at that age, या बट आउटस्टैंडिंग and even the crowd, मतलब फाइनल मैच में आई थिंक 50,000 क्राउड पूरा था। 50,000 या बॉम्बे में भी जब डीवाई पॉटल खेल रहे थे पाजी वहाँ पे भी 30,000 27,000 28 कैपेसिटी पूरी आ रही थी फुल ग्राउंड से एंड वही चीज देख के फिर वो होते हैं ना कि एनीबडी समबडी लाइक सचिन सर हु सो हम्बल इतना कुछ इतना ग्रेट होके भी Yeah. तो ऐसी चीजों से ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हाउ टू लिव योर लाइफ एंड इवन आफ्टर बीइंग ग्रेटफुल इतना सब कुछ उन्होंने कर लिया बट स्टिल ही इज ग्रेटफुल कि इस गेम ने ही दिया है जो भी दिया है और इसको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, वो बहुत बड़ी बात है। आई रिमेंबर इट वाज अ नॉस्टैल्जिया, वो ड्रेसिंग रूम से वॉक करते हुए आ रहे हैं। तू कितने सीरियस जो बैटिंग में थे, डू यूज्ड टू थिंक कि यार देखी जाओ बस, बंदा जो कर रहा है बस देखी जाओ, फैन मोमेंट लाइक बैटिंग में तू कह रहा है। नॉट ओनली मी आई थिंक बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसा ही था कि भाई जब पैड अप हो रहे हैं तो देखना कि भाई कैसे वही पैड ना वो सब Slow प्रैक्टिस motion में सेशन चल में रहा यहाँ पड़े होते थे पैड तो दो तीन लोग वैसे ही जाके वैसे ही देखने लगते थे कि यार यही पैड है वो यही पैड है। ये लेजेंड। तो ऐसी चीजें तो होती रहती हैं जब वो होते हैं उनकी प्रेजेंस में लोगों का थोड़ा सा मतलब बौखला जाना इज नॉर्मल, दैट इज व्हाट आई फेल्ट। That's great. What about UV Pa? मतलब he was batting brilliantly as well. अभी भी वो बैट का फ्लो, अभी भी वो बैट का स्विंग, डू यू थिंक ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट वे, और इज इट ऑल नेचुरल? प्रैक्टिस तो वो कर रहे थे, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली ही आल्सो सेड कि सचिन पाजी इज प्लेइंग एंड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, वी हैव टू विन इट फॉर हिम। तो इफ वी डोंट प्रैक्टिस तो फिर कहते बात नहीं बनेगी। यूवी पाजी भी लगे हुए थे प्रैक्टिस करने, रेगुलर अपना सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे थे। Nice. Okay, so someone who's played cricket but wants to get into the Legends League or all the leagues जो होती हैं, what is the criteria? Yeah, I feel some leagues have a criteria of domestic games कि इतनी domestic games होनी चाहिए। I don't know, कई लीग्स में है, अब जैसे जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग होगी या इन लीग्स में है कि जब इंडिया की टीम है तो यू हैव टू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री। Okay. और जो क्लब वाली हैं वो आई थिंक लोकल प्लेयर्स जो रिटायर हो गए उनको स्काउट करते हैं, या जो एजेंसीज होती हैं जो प्लेयर्स की एजेंसीज हैं तो वो अपने आप टाई अप करती हैं और प्लेयर्स को। What do you think? It's a tricky question. If you want to avoid it, you can avoid it. Are you do you think ये जो leagues हैं they are full proof? I know IPL क्योंकि game को respect करना, I'm not talking about Legends League, obviously Sachin Bhaji is involved, it's got, but there are so many other leagues जहाँ पे कई बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। You think they are still trustworthy कि हाँ भाई जो हो रहा है it is actually a real event, कुछ off the track कई लोग नहीं जा रहे हैं? ਭਾਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਆਈ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ এনवायरमेंट ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਫੀਲ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ रूटीन है या ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ तो you can always avoid those kinds of people those kinds of things ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ that is what Yeah. नहीं बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जो बहुत सारी लीग्स ने की है एंड आई होप ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਐਂਡ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ Yeah. ਯੂ نو ਟੂ ਲਿਵ योर ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਡੀਸੈਂਟ ਮੈਨਰ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਚਸ ਹੈ ਤੇ I think they pay well also they pay decent amount of money so ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਥ ਸਾਰੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਓਪਰਚ्युनिटीज ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਆਈ ਟੂ ਫੀਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ देयर इज अ बोर्ड ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਬੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ somehow we need to gather that thing together आई थिंक in a इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू रेज मान पर पता है क्या इट इज अबाउट व्यूअरशिप मतलब हमारे को एक्चुअली वी नीड टू प्रमोट इट ऑल मे बी द इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटीज कि यार और गेम्स में अब आ रहे हैं लोग definitely हाँ पीपल आर पुशिंग अदर स्पोर्ट्स बट एक्चुअली पीपल डोंट वांना वॉच इट तो इसलिए वो दिखाए भी नहीं जाते हैं कहीं स्पोर्ट्स बट एक्चुअली एज यू सेड पोटेंशियल या बहुत सारे प्लेयर्स डिफरेंट फील्ड में हैव डन सो मच आर डूइंग सो मच पर वो हम पुश नहीं करते हैं क्योंकि यार मीडिया वाले ही मीडिया कहते हैं कि वाले यार हैं कुछ व्यू ही नहीं आना तो मैं क्यों चलाऊं अपने हाँ चैनल जी हाँ जी दैट इज सैड एंड वी होप कि वो चेंज हो ओके लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड देन अ रैपिड फायर राउंड ठीक तो कुछ ऐसा कभी फेस हुआ कि यार पीपल यूज्ड टू से कि यार मतलब आई नो कि यू नेवर यूज्ड टू थिंक ऑफ इट बट थिंग्स लाइक पीपल यूज्ड टू से यार कि यू आर नॉट going to the next level because maybe your work ethics are less maybe you're not practicing you're not training enough ऐसा कभी कुछ सुना है अपने बारे में हाँ क्योंकि जी हाँ जी बहुत सुना है भाजी कि यार थोड़ा इजी गोइंग है तू हाँ मैच तो हाँ पहला बैटिंग नहीं करता हाउ डिड यू टेक इट डिडंट मैटर ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ Yeah. ਮਤਲਬ until and unless the ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ Yeah. that is what I've been following throughout my Nice. cricketing career Okay. Second one is do you think too much of technique like पहले तो base set हुआ but maybe like your head position maybe your trigger movement कुछ ऐसी चीज जो अभी भी legends league या जो leagues खेल रहा है उसमें भी you think of कि यार मेरी ये चीजें ठीक रहनी चाहिए हाँ जी इनिशियल मूवमेंट आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन के लिए मेरे को मैं उस जोन में आ जाता हूँ अगर मेरी इनिशियल मूवमेंट की टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट है तो मैं उस जोन में आ जाता हूँ कि थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड पहले बॉल दिखने लग जाता है कि थोड़ा इजी लगने लग जाता है नहीं तो और जब भी मेरे को प्रॉब्लम आती है आई गो बैक टू इट वीडियो देख लेते हैं या वो सारी फैसिलिटीज़ आजकल क्रिकेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया सब कुछ आ गया है तो वीडियोस वगैरह देख के हेल्प अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तभी वीडियो में चेकिंग योर टाइमिंग एज वेल कि ट्रिगर की मेरी टाइमिंग क्या हाँ जी सिर्फ मोस्टली यही होता है क्योंकि बाकी तो पता लग जाता है बैटिंग करते हुए कि क्या हो रही है मेरे को ट्रिगर का ही मेन वो होता है बट यू थिंक ट्रिगर मूवमेंट पहले you never used to हाँ take जी हाँ जी and then you started it so some youngster watching trigger important है और कब ऐड किया अपनी गेम में मैंने आई थिंक अंडर 17 या अंडर 19 में ऐड किया उससे क्यों? पहले आई डिडंट यूज्ड टू प्ले आई डोंट नो आई फेल्ट मैंने सर से भी डिस्कस किया था तो मे बी थोड़ा जब लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है या थोड़ा बॉलिंग तेज हो जाती है उसके लिए उसको थोड़ा काउंटर करने के लिए या स्पीड्स को काउंटर करने के लिए सो दैट मैं थोड़ा रेडी हूँ पहले ही
तो वो चीज़ के लिए मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और अभी भी लेकिन मेरा पाजी एक ऐसा रहा है हमेशा से ही कि अगर आप मैचेस डोमेस्टिक मैचेस का भी देखोगे ना, मेरा जो स्टांस है वो अपने आप ही मैच में वो होता है। आई डोंट मतलब अगर मेरे को विकेट जैसे बाउंस कम कर रहा है या कुछ है, अपने आप मैं बिल्कुल ही वैसे ही खड़ा हो जाऊंगा। या मेरे को अगर फील आई फॉर एग्जांपल अगर कोई टर्निंग विकेट है तो मैं सारी विकेटें कवर करके खड़ा हो जाऊंगा। तो वो कोई फिक्स नहीं है कि मैंने लेग स्टंप ही लेनी है अच्छा, या ऑफ स्टंप फ्लेक्सिबल। ही लेनी है या मिडिल स्टंप, वो मेरा कुछ नहीं है। अगर रैंक टर्नर मिल गया तो मैं बिल्कुल ऑफ स्टंप पे सारी विकेटें गिर के खड़ा हो जाऊंगा। या कई बार बॉलर को वो करने के लिए बिल्कुल ही साइड पे खड़ा हो जाऊंगा। तो ये सब कोई फिक्स्ड मेरा वो नहीं था, सिर्फ फील पे अच्छा, कि जिस पे मुझे फील आ गया तो मैं, नाइस। अगर मैं नॉर्मल स्टांस ले रहा हूँ मुझे फील नहीं आ रहा तो मैं अपना चेंज कर लेता था। कई बार सीधा हूँ, कई बार टेढ़ा हो गया, तो जहाँ पे फील आने लग गया बस वो वाला उस दिन के लिए पक्का कर लिया। वाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है कि यार फ्लेक्सिबल रहो, बाय द बुक्स मत जाओ कि यार बिल्कुल सर ने बोला है क्रिकेट या के हिसाब से हाँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तो भाई। यार सिक्स सेंस है यार, क्रिकेट स्मार्टनेस इज टेलिंग यू ना कि यार इस विकेट पे हाँ तो जी। ऐसे खड़ा हो सकता है। दैट्स ब्रिलियंट। जैसे भी मैं सुना कि स्टीव स्मिथ कई बारी जैसे सोचता है कि मेरी बॉडी की बॉल मैं वो अच्छी खेलता हूँ, बाहर वाली नहीं खेलता। कई बारी जो बॉल बाहर की तंग कर रही होती है, सो समटाइम्स ही गेट्स हिज बॉडी इन द लाइन, कि बॉल की एज लगे तो बॉडी पे लग जाए। समझ। सम प्लेयर्स हैव सेड दिस कि यार ये ऐसे भी करता है। दिस ब्रिलियंट। वो ओके, हर प्लेयर का है भाई, यू कोई ना यू कोई फाइंडिंग फंडा योर है। वे, अपना रास्ता लभ रहे हो एज अ सही प्लेयर बात के है। कितने करना है। ओके, द थर्ड वन इज विच इज अ चैलेंज एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मोबाइल फोन आ गए भरावा। सो वी हैव, हमने तो देखी है एरा, पहले के टाइम पे देयर वाज नॉट नॉट मच ऑफ इंटरनेट, नॉट मच ऑफ सोशल मीडिया। अब आजकल के टाइम में इतना हम फोन पे सभी बैठे हैं, काम भी फोन पे हो रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं तो वो कहते हैं पापा भी फोन पे लगे हैं जी, कोच भी फोन पे हाँ जी, लगे हैं, हाँ सो जी। हमें भी रहना है। बट एज अ यंग क्रिकेटर, हाउ डू यू बैलेंस इट? भाई आई फील सॉरी आई फिल भी फील ठीक है। आई fill in the blanks over here। अपना आवाज से लग लो। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स अब खेल रहे हैं उस लेवल पे, उन्होंने ये चीज़ें कट डाउन की हुई हैं अपनी लाइफ में से। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ what can we call them, डिस्ट्रैक्शन ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਤਲਬ अवॉइड। ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਸਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ या ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੰਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਉਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਯੂਥ ਦੂਰ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਏਮਸ ਵੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ ਆਈ ਫੀਲ दैट विल बी बेटर। ओके, नाइस। ओके, लेट्स गो टू रैपिड फायर। रैपिड फायर मतलब एक हाँ कोई आई थॉट आई रैपिड फायर सी। नहीं सीखा यार रहता। दीज वर थ्री टेक्निकल क्वेश्चंस, मतलब डिटेल से उतना काफी पूछे हैं, मैं तेरे शुरू तो एंड तक टेक्निकली चल रहा है। ओके, कमिंग इनटू योर रैपिड फायर, द बॉलर यू फेस विद द मोस्ट डिफिकल्टी यार इनू खेलना सब तो औखा है। जसप्रीत बुमराह। ओके, द बैटर यू लव वाचिंग बैट। शुभमन गिल। आई वाज थिंकिंग कौन आने वाला है। वो बचपन तो ही है भाजी, वो तो शुरू तो ही when since he was a kid। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। नाइस। ओके, द कोच यू वुड लव टू बी कोच्ड बाय। रैपिड फायर हैगा। रैपिड फायर कोई कोई कोचा ना लेना। नहीं आई थिंक गैजा वाज गया था। गैरी कर्स्टन। ओके, आई वाज विद हिम जीटी। गुजरात टाइटन एंड ਉੱਥੇ आरसीबी आल्सो। ओके। आरसीबी भी ਸੀ। ओके, द बैटर यू लव बैटिंग विद। यूवी ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਔਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡਸ में भी यू ਹਾਂਜੀ बैटिंग। ਲੈਜੈਂਡਸ ਵੀ, ਤਾਂ यूवी ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। इफ यू गेट अ चांस दोबारा क्रिकेट इंडिया ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ, where would you see your career end, ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਇੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਐ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। Okay, with that
Let's go in the net. Let's get a tutorial. एक तो रैम शॉट बहुत तगड़ा मारता थी भरावा, bowlers bowling at 140 kilometers per hour. So we'll want to know of that and about your backlift. हाँ। Backlift तेरी भरावा बहुत तगड़ी थी. So for young cricketers, let's see how you do it. डन भाई। ओके मानसा, वी आर इन योर नेट्स जहाँ पे तू बहुत प्रैक्टिस करता है, टिंकू सर की एकेडमी है। हाँ जी। अब एक चीज़ सबसे अच्छी लगी हमेशा तेरी, वो थी बैकलिफ्ट। तो बहुत छिक्कों के कनेक्शन आई थिंक इज कनेक्टेड विद योर सेटअप एंड योर बैकलिफ्ट। हाँ जी। क्या एग्जैक्टली है वो? ਭਾਜੀ ਬੈਕਲਿਫਟ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਟੈਪਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫॉरवर्ड डिफेंस ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ यही था कि बैलेंस्ड आपका वो हो फुट। और अभी स्टार्टिंग में आई जस्ट टैप माय बैट, स्टार्टिंग में सिर्फ टैप बैट करता हूँ, लेकिन जब इनिशियल ले लिया फिर ये सेकंड स्टेप हो गया। सो सेकंड स्टेप क्या है? शोल्डर के पास या एल्बो आपका, शोल्डर के पास, शोल्डर आपका सीधा हो गया लाइन में। ओके फिर आपका रिस्ट कॉक होगी। ओके। ये इसमें मुझे लगता है कि बैकलिफ्ट में अगर रिस्ट कॉक हो रही है ना आपकी, तो आधी प्रॉब्लम्स तो बैकलिफ्ट की वैसे ही दूर होगी। ओके। और बस इसी चीज़ पे फोकस स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि बस शोल्डर सीधा रहे, एल्बो एक लाइन में हो और रिस्ट कॉक करे। अगर रिस्ट नहीं कॉक करती तो फिर बैट नीचे रहता है, अगर रिस्ट कॉक कर रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बस अपना जो पेंडुलम वाली स्विंग, पेंडुलम स्विंग, व्हाट इज अ Yeah. पेंडुलम स्विंग? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ओके। जैसे पेंडुलम होता है ना, हम्म। तो ऐसे प्रैक्टिस करवाते थे। फिर उसके बाद हमने वो कर ली स्टार्ट ये। अगर हमारा मीट पॉइंट के टाइम दोनों बाजुएं हमारी सीधी होंगी, सो वील गेट डबल फोर्स बॉल। अच्छा। दैट इज़ व्हाट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस कि जब हम मीट कर रहे हैं तो बाजुएं हमारी दोनों सीधी हों। तो उसके यहाँ बाद? से बस यहाँ से आपका बैकलिफ्ट से ही पेंडुलम बन गया आपका फ्लो। सो आफ्टर मीट नहीं, अभी कई कोचेस कहते हैं कि हाई एल्बो रखो, बट दैट नॉट फॉर लॉफ्टेड। लॉफ्टिंग में हम कह रहे हैं इम्पैक्ट पे बोथ द हैंड्स विल बी स्ट्रेट। इन लॉफ्टिंग या ओके। अगर आप नीचे से भी कर रहे हो तो अगर आपका मीट पॉइंट भी इतना आ गया जितना स्ट्रेट हो सकता है आपका, तो दैट इज़ वो फोर्स ही क्रिएट कर रहा है बॉल में, स्पीड क्रिएट कर रहा है। तभी आप देखोगे कई जो बैट्समैन है वो डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस के भी चौके मार लेते हैं। Okay. Now quickly, a favorite shot of yours in the later part of your career, भरावा ram shot बहुत तगड़ी मारता थी। Just 3 key points. Ram shot में क्या important? Switch hit, not a ram shot. Ram कह ला, switch hit कह ला। But तू पीछे मार रहा है ना, तो ram shot भी कह सकते हो। 3 और 5 key points जो तेनू लगता है S shot ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਆਈ ਫੀਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫॉर ਮੀ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਮੈਡੀਟੇਟਡ ਸ਼ਾਟ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੋਲਰ ਐਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲਰ ਯਾਰਕਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਫੀਲਡਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, शॉर्ट थर्ड और हाँ, शॉर्ट फाइन short हमेशा ही third, ऊपर होता yeah. है, लॉट ऑफ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਂਸ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂ ਖੜਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬੋਡੀ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਬਾਲ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ पेस यूज कर। So जब एंड shot जितना आप बेंड रवांगे, Yeah. फॉर एग्जांपल अगर हम इतना बेंड हो गए तो फिर ज़्यादातर कनेक्शन हो ही जाता है। तो नीचे बॉल के अंदर आने Ball के के लिए you have अंदर, to be yeah. थोड़ा बेंड रहना है। बेंड रहना ही रहना पड़ेगा बिकॉज यॉर्कर नु पिक करना है बॉडी ना। हटानी है कि नहीं एंड में? नहीं, आई डोंट थिंक उसमें कोई ज़रूरत है बिकॉज जितना हमारी बॉडी में होगी ना बॉल उतना चांसेस है कनेक्ट करने के ज़्यादा। ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स सी कि तू कितना मार रहा है। या तो मेरा क्या था अच्छा, मुन्ना पूछ कि रहे। बस थोड़ा ओपन हुआ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ ਆਊਗੀ ਇਹ ਆਪੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ओके, 3 balls, क्विक, थोड़ी तेज। ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਲ ਤੇ ਬੋਡੀ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਬੋਡੀ ਵਾਲੀ ਵੀ। ऐसे नहीं करना। हाँ ਉਹ याद है। ओके, बट समवन जो प्रैक्टिस करना चाहता है ये शॉट, क्या कुछ लेवल होते हैं कि पहले ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ अंडर ਮੇਰੇ आर्म ਖਿਆਲ करो, ਹੁਣ टेनिस बॉल से ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਬੋਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਪੇਸ ਲਈ, कीपर ਪਰ ਸਿਰਫ ਯਾ ਆਪਦੀ ਬਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਭ ਖੇਡਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ਾਟ,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਦੈਟ ਸ਼ਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ So you use this shot and you find a way कि Yorkers दोनों फील्डर ऊपर हैं, you can find a way to score runs. ਯਾ ਐਂਡ ਬਟ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰਕਰਸ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ Nice. Okay, जानते जानते मान साहब your autograph. Thank you, Man Sahab. God bless you with your second innings. Thank you so much. Keep shining.